अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जाने लगे हैं पाथ फाइंडर के एक सेमिनार पर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पीछे बन गया था मसला, क्योंकि पाथ फाइंडर की वैन की जो अंदर आनी थी उसके लिए क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा था। तो हमने डिसाइड किया अब खुद बाहर चल कर जाते हैं। बाकी अगर वैन अंदर आ जाती तो ये यूनिवर्सिटी की भी एक ज़िम्मेदारी पर बन जाता है, उसकी सिक्योरिटी वगैरह। बाकी ये कि इवन आई डोंट नो हम जा कर रहे हैं, बस सुना है कि अमानी बाग है। सो दिस इज़ गोना बी आवर राइड फॉर टुडे। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कुछ सीनियर्स का जो अभी तक नहीं पहुँचे, और फिर हम चलना शुरू करेंगे। और बस सफ़र करते करते हम इस्लामाबाद के भी बाहर पहुँच गए, और यहीं से मेरे दिमाग में सवाल है, अरे जा किधर रहे हैं। मुझे तो किसी अच्छी जगह आ गया। चलो फाइनली पता तो चल गया जगह है कहाँ। व्लॉग कब आएगा पता नहीं, तस्वीरें अनाउंसमेंट कर दूंगा, बच्चों को बता दूं किस सब्सक्राइब कर ले आप लोग कर रहे। सो फाइनली वी आर हेयर। असल में ना अगर आप गूगल पे सर्च करो तो अमानी रेजिडेंसी आता है, और इन लोगों ने लोकेशन दी हुई थी वो अमानी बाग की दी हुई थी। बोथ आर क्वाइट द सेम थिंग। सर थोड़ा बताएं तो ये सीन क्या है। चलो ये आ गई है गुर्दे शुर्दे निकाल। तुम लोगों को कितना नहीं पता कि जो है ना वहाँ से डिपार्चर कितने बजे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अमीन बाग। ये वो जगह है जो कि आपको गूगल मैप्स पर भी नहीं मिलेगी, और आते साथ इन्होंने कहा है कि बंदे नीचे ड्रॉप कर दें। मुझे अभी से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लग रहा है। सो ये है अमानी रेजिडेंसी प्लस पाथ फाइंडर का एक मीटिंग एरिया। सो अब यहाँ से इनकी गैलरी से होते हुए हम निकलेंगे इनके सेमिनार हॉल की तरफ। सो देयर इज़ आवर रिजर्वेशन फॉर नस्ट। फ़िलहाल तो यहाँ पर सिर्फ CME के स्टूडेंट देख रहे हैं, बाकी फाइनली हम इनके सेमिनार हॉल हो गए जहाँ पर इनकी प्रेजेंटेशन होनी है, और वो जो मीटिंग है वो सब होगी। नस्ट की सीटें फिल हो गई थी, तो हम अभी ये फास्ट की रिज़र्व सीट्स पे बैठ गए हैं। नस्ट के स्टूडेंट नहीं, अब हम फास्ट के स्टूडेंट बन चुके हैं। यहाँ पे तकरीबन हर सीट के साथ इनका पाथवे का न्यूज़ लेटर भी पड़ा हुआ, एंड दिस इज़ देयर वॉल्यूम नंबर 9। बेस्ट वे टू प्रमोट what your objective are. And privileged to welcome you on behalf of the Pathfinder Group, an organization that has proudly served Pakistan for more than 4 decades. Since its inception, Pathfinder has stood as a symbol of trust, discipline, and innovation. Good morning. In the next 5 minutes, I'll try to cover the Security Services Division of the Pathfinder Group. Pathfinder Group, as I explained, with over 12,000 employees and our presence in 75 small towns and cities, we have two largest security. So then CEO SMS, Sayyid Colonel Sayyid Hassan Raza, then our CEO for RCS division, Wing Commander Sagir Hussain, and then myself being Jahangir Javed as the Chief Operating Officer, having experience in the security industry since last 18 years, and other specified and renowned customers as well. This is the clientele of the SMS. As I mentioned, Italian consulate, Japan consulate, and some other being on the screen. That we must have this newsletter and spread this. What we are giving, what we are bringing betterment to the lives of a youth. It's a company from the Pathfinder Group in the division of Financial Service and Technology Division. The Financial Service and Technology Division has been established in 2013, and we have created a fintech within the group. This time, when PTA, Pakistan Telecommunication Authority, requested us that please apply for a new license, and that license is actually being that we need to create more and more touch points, but through technology touch points. And those technology touch points is most of the people at that time is having, that Pakistan is having 36 at that time, 5 years back, 36% of the people in Pakistan are using UADP, that we have acquired 30.34 million accounts, new accounts in Pakistan, which has never been in any part of the world. This is exciting. The other part, 36% of the accounts are women accounts. So these
these accounts is actually contributing to the women empowerment endorsed by World Bank and State Bank of Pakistan. These are not just numbers for you guys, these are verifiable numbers from the State Bank's website. But today with you is about a bold and timely initiative that sits at the intersection of entrepreneurship and leadership. The Pathfinder Citadel, a center for innovation, technological advancement, digital entrepreneurs. Cryo, a sports tech. Switch, Echo, AI Team Force, and TASA, a women-led startup, and ABLE, a healthcare. With this, I thank you very much. I attended its first meeting. The members of the advisory council, chairman himself. सो फाइनली इन लोगों ने हमें ब्रेक फाइनली दे दिया। बहुत घंटे इन लोगों ने खपाया वहाँ पर, लेकिन ये है कि वैल्यूएबल थी सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी अभी मिली है। अभी थोड़ी देर बाद हम की जो फाउंडर हैं उन्होंने भी आकर अपना खिताब देना है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और ये रहे सेमिनार हॉल के बाहर के व्यूज़, और ये सामने की तरफ हमारा सेमिनार हॉल है। इसके अंदर ये रहा उनका वो डिफेंस जर्नल जिसकी हमने पहले बात की है, और यहाँ पर न्यूज़ लेटर। और इसकी सबसे अच्छी बात कि ये रोमन इंग्लिश या फिर रोमन उर्दू कह लो उसके अंदर लिखा हुआ है। और ये रही वो सीट जो कि सुल्ताना सिद्दीकी के लिए रिजर्व पड़ी हैं 3 नहीं टोटल 4। और ये हमारे सीनियर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के करने के लिए अस्सलाम वालेकुम। और 47 के 47 आप जी इंट्रोडक्शन करवा दें। पिक्चर्स का बहुत शौक है। सही है, पिक्चर्स का शौक है। नाम अब्दुल्ला मिकदाद 46 डिग्री। ठीक है। मकसद और सर आप? अब्दुल्ला मैकेनिकल 46। ये सारे हमारे सीनियर्स हैं, और इंशाल्लाह बाद में ये हमारी ना प्लेसमेंट में मदद करेंगे। बहुत तेज हो रहा है। कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। काफ़ी फेक लग रहा है सर जी। फेक यार, ये देखो इसमें के अंदर जो बंदा मुझे लग रहा है ना, ये इसराइल का लग रहा है। ये इन्होंने झंडा क्यों लगाया है? देखेंगे एक के बस ये स्विट्ज़रलैंड का सर सिंबल, डेनमार्क स्विट्ज़रलैंड। अब ये देखो, ये आ गई मर्सिडीज़ के साथ ये गार्ड खड़ा है। सही है। ठीक है। अब ये बता रहा है कि ये जो हम ये पैसे लेके जा रहे हैं, तो हमने इस वैन को जो है ना रास्ते में पकड़ लेना है। तो मैं इस बात को देखते रहना। ठीक है। हाँ, इस बात को हमने पूरे सेमिनार से यही ये सीखा। सेमिनार में ये सीखे हैं। ये देते वक्त कहते हैं कि ये उठा लो, शर्माना बिल्कुल नहीं है। तो हमने कहा शर्म और हमें। तो फिलहाल यार अब कब से बैठे हैं, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रही कि यहाँ चल क्या रहा है। The last gentleman, and I met him because actually if I came earlier to you, he said ये किसी काम से आया। तो मैं आपको आखिरी दिन पे मैं आके मिला। Then he and I have become everlasting. We call friends, but he said no, I'm buying it. You know, so I take that. Thank you for being here. Taking the time. Of course, you are an icon to us for all what you have done for this country. So, मैं ब्रीफ करके मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, इसलिए कि बहुत से लोग यहाँ पे हैं। फाकिब निसार साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो हम उनको भी सुनना चाहेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें अपने मुल्क का ख्याल करना चाहिए। It impacts every aspect of our life. And digital transformation is future, and future is here. And communication bottlenecks removed, though they are still there, as Salman Saab highlighted, very much that we are still lacking around 70% population is still on 2G. तो फाइनली सेमिनार हो चुका है ख़त्म, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर लंच। अच्छा, तो ये है यहाँ का सुलेमान टावर जो ऊपर मस्जिद की तरफ लीड करता है। तो फाइनली हो चुका है अब हमारे खापे का टाइम,
KFC है भाई, KFC KFC चल रहा पता कहाँ पे आए हैं, KFC आलू छोले इस तरह की चीज़ें, KFC भाईजान फुल पार्टी है, फुल मॉल है, ठीक है। आज हम जो है ना वो अमानी बाग पाथ फाइंडर ग्रुप, ओहो चेक करो यार, यकीन मानो पाथ फाइंडर ग्रुप जो है ना, आई लाइक। मैं 2 खा गया हूँ और मैं 2 और लेने जा रहा हूँ, सही। मुफ्त का मॉल। सो ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये है अमानी बाग। ये सारा जितना भी बाग है जो पहाड़ों में फैला हुआ है, और ये रही अमानी रेजिडेंस। और अगर आप गूगल मैप पे भी सर्च करेंगे ना, यही आपको अमानी रेजिडेंस ही मिलेगी, द होम ऑफ सहगल फैमिली। अच्छा, तो यहाँ से हम जा रहे हैं मस्जिद की जानिब। हम टावर से लिफ्ट नहीं ले सके क्योंकि एट अ टाइम सिर्फ 4 लोग ही जा सकते थे और हमें थी जल्दी, तो फिर हम सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर जा रहे हैं। इंशाल्लाह वापसी पर आपको लिफ्ट भी दिखाएंगे। ये यहाँ की मस्जिद जिसका पहले जिक्र किया था, और ये यहाँ का एक टावर, और यहाँ से लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है लेकर। और ये रहा अमानी बाग का व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, और ये नीचे इनका टेनिस कोर्ट, और ये बाकी सारा व्यू। तो ये रही लिफ्ट जिसका नीचे जिक्र किया था। ये हमारे भाई हैं, कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ इनका चैनल है अहमद कैसर के नाम से, तो इन्हें सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपने सुन लिया ना भाई की बात, अब तो आपको मानना लाजमी पड़ेगा। करना है, लाजमी करना है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ से तो फ्री हो गए, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन होस्ट से जाकर देते हैं। ओके, तो आप भी मेरी तरह ये इमेजिन कर रहे होंगे फिलहाल कि ये पाथ फाइंडर है क्या। तो बेसिकली पाथ फाइंडर इज अ पेरेंट कंपनी जो कि इकराम सहगल ने इनिशिएट की थी। इसके अंडर भी ना 2 डिवीजन आते हैं, वन इज द सिक्योरिटी डिवीजन और दूसरा इनका टेक्नोलॉजी डिवीजन, और इन 2 डिवीजन के आगे भी 2 डिवीजन है। खैर, जो सेमिनार हुआ था ये इसका असल मकसद था टेक्नोलॉजी डिवीजन के लिए। सिक्योरिटी डिवीजन के बारे में उन्होंने बताया था, लेकिन बहुत थोड़ा एक्सप्लेन किया था सिक्योरिटी डिवीजन है क्या, व्हाट दे डू एंड व्हाट दे ऑफर फॉर देयर एम्प्लॉय। दूसरा डिवीजन था जो था टेक्नोलॉजी डिवीजन, उसमें भी फिनटेक के ऊपर मेन बात थी। इन्होंने अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि नाउ दे आर स्टार्टिंग कि ऐसी चीज ले आना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपके जैज कैश में अगर पैसा है तो फिर आप उसको नया पे के अंदर निकलवा लें, या फिर ऐसा है कि आपके पास नया पे में पैसा है तो फिर आप एक जैज कैश वाले एजेंट के पास जाएं और उससे पैसा निकलवा सकते हैं। ब्रदर, अगर आपका कोई स्टार्टअप है तो फिर डेवोस चैलेंज पाथ फाइंडर का एक कंपटीशन है जो आपके लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि यहां पर आप आएंगे, अपने स्टार्टअप को पिच करेंगे, और अगर सिलेक्ट होते हैं तो फिर अगले राउंड की तरफ जाएंगे इन यूके, जहां पर आपको बड़े इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। इन द एंड एक पैनल डिस्कशन हुई थी जहां पर डिस्कस किया गया था फ्यूचर टेक्नोलॉजी को लेकर, और इसके अंदर नस्ट के एक प्रोफेसर भी मौजूद थे। यहाँ पर नस्ट, फास्ट के स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन मौजूद थी जो कि बतौर ऑडियंस वहां पर गई हुई थी। हम भी बतौर ऑडियंस ही थे वहां। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपका कोई सवाल हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अल्लाह हाफिज।